हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो इन द प्रीवियस क्लास हम लोगों ने क्या पढ़ा था, बायो-सावर्ट लॉ और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चंस किया था, उसका एप्लीकेशन किए थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, वी आर गोइंग टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड फॉर ए स्ट्रेट कंडक्टर। तो लिख लेते हैं टॉपिक और इसका हम लोग डिराइवेशन करेंगे। ये भी क्या है, बेस्ड ऑन बायो-सावर्ट लॉ के ऊपर ही है। सो क्या पढ़ना है आज, मैग्नेटिक फील्ड due to a straight conductor। एक स्ट्रेट कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है वो आज हम लोग को पढ़ना है। ओके, तो स्ट्रेट कंडक्टर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू ड्रॉ ए स्ट्रेट कंडक्टर। सपोज से दिस इज ए स्ट्रेट कंडक्टर। ओके, so this is a straight conductor. Let us say this end is x and this end is y, and current is flowing from x direction to y direction. Let us say this is the current that is flowing, this I current is flowing through this conductor xy. Now we want to find magnetic field at a position. Suppose here I am putting a point over here. Let us say this point is P, and we want to find magnetic field at point P, right? So for that reason what we have to do, we have to draw a line from a perpendicular line to this position. Okay, this is given to us. I will write it down. Let us say this distance is one capital R. Okay, this is the distance from the wire at point P. We want to find magnetic field. Now let us consider a small length dl, because we need a length dl. Let us say this length is dl. And to apply Biot-Savart law, what we know, we have to draw a line from dl to the point where we want to find the magnetic field induction. So whenever we find magnetic field induction, what we do, we just draw a line from the small current element dl to that particular point. That particular point is what? That is your P. So let me draw this line. Let us say I have drawn this line over here. Okay, now let us say this angle is what? This angle is theta. This angle is theta, and let us say this angle is phi. This angle is phi and this angle is theta. Okay, now let us say this point is A, and the length from this position, suppose this position is B, from B to A, this length is how much? L length. This length is L, and this is position A. Okay, now from B to P, let us say this distance is how much? This distance is R, small r. Now what we are going to do, we are going to draw a dotted line from the end points of y and x to the point P. From here we are going to draw these two lines. Okay, let us say this angle is how much? This angle is phi 1, and the angle from here to here, this is how much? This is phi 2. Okay, is it clear? See the diagram properly. Now what are the known values that is given over here to us? So I am going to write it down, the known values. The values that you know, and what is given in this derivation, what are the values that is given? So what is given to us, known values, is capital R. We know what is capital R. Again what we know what is phi. We know what is phi, this angle, this small angle, phi. And what we know that is phi 1 and phi 2. These things are known to us. During the derivation we will consider that we know all these values. This is given to us, so whenever we will get the answer, we have to get the answer in these terms. Okay, what are the unknown values? Unknown values. So what are the unknown values? This is small r is not known to us. We don't know what is the value of small r. We don't know what is theta. The value of theta we don't know, and we don't know what is dl. This is dl, we don't know. So L is known to us. Okay, these are known values. L is also known to us, but we don't know what is dl, right? Okay, now this will not come, because dl is, if L is not unknown, then only dl will be unknown to us. Okay, this comes under your unknown values. Now what we are going to do, we are going to
write the Biot-Savart law, where we are going to find magnetic field induction at point P. So we are going to write the formula. So for small element dl, the magnetic field induction dV is given by the formula is क्या था formula? Magnetic field induction at a point P is given by mu naught upon 4 pi. And what is the current? The current is your I. So this is I dl. Okay, now sine. What is the angle that is made by dl? We always consider the angle made by the dl and the current. Current is flowing in this direction and this is the dl, so this angle is theta. So we will put it here as theta. And what is the distance from dl to this point? This is small r, so we will put it as r square. So you know this formula. This is from Biot-Savart law. From Biot-Savart law, I have written this formula, right? But let's see what are the things that is unknown to us. Okay, these are the values. This is unknown, theta is unknown, dl is unknown. So we are going to replace these values dl, theta and r, because this is not known to us. What are the things that is known to us? This is small capital R, phi, phi 1 and phi 2. These things are known to us. So what we are going to do, we have to convert these equations into the known values. Okay, now this is the equation from Biot-Savart law, or you can write from Biot-Savart law, from Biot-Savart's law, magnetic field induction due to dl at point P is, so from Biot-Savart law, magnetic field induction due to dl at point P is given by this formula. Okay, now we are going to replace these values. First of all, let us see for sine theta. Let us say for theta, we are going to replace the values for theta. Okay, now from the figure you can see this figure, that is triangle ABP. From triangle ABP, what we can see, this angle theta plus phi. Angle theta plus phi will be equal to how much? 90 degree. This is how much? This is 90 degree. So this angle plus this angle will be equal to how much? 90 degree, because 90 plus 90 will be 180 degree in a triangle. Okay, so theta plus phi is equal to how much? 90 degree. Again you can see what we are going to do. We have sine theta over here, so we will put theta here. So let us bring this phi in this direction. So this is 90 degree minus phi. Now we will put sine theta in both the sides. So this is sine theta. Here also you are going to put it as sine. So this is sine 90 minus phi. So what will be the value of sine theta? Sine theta is equal to nothing but sine 90 minus theta is what? This is your cos theta. Here in place of theta, what is there? Phi is there. So we have got sine theta can be replaced as cos phi. And what is the known values? Phi is known to us, whereas theta is not known to us. One thing we have converted. Okay, let us say this is number 1. Again, let us say for dl, how we are going to find? Let us say this is L. From this triangle you can see ABP. L is not known to us. Now what are the things that we know? We know this is R. We know this is R. So from this triangle you can see this is the triangle. We are considering this angle phi. Okay, so this distance is L, this distance is R, and this is R. So L by R, what is L? This is the L, this is L, and this is what? This is your R. So this is what? This is your perpendicular, and this is your base, P by B. So perpendicular by base is your, this is nothing but your 10. So we can write this is 10 phi. Why? Here you can see this is the ratio L by R. The ratio L by R is what? This is L is what? This is perpendicular. And what is this is R? This is base, because this angle is touching this R. So this is base. So perpendicular by base is your 10 phi. So from here what we can write? This is L is equal to R 10 phi. So we have found the value of L, but what is given in the question? Though according to the question or according to Biot-Savart law, we have dl. We don't have L. Okay, so what we are going to do? We have to find the derivative of dl. So we are going to differentiate these two
values. Okay, differentiating with respect to phi. So this is dl upon d phi. We are differentiating. So this will be equal to r. Differentiation of tan phi is your sec square phi. Okay, remember this. d d theta. This is a formula for mathematics. Okay, d d theta of tan theta. This is equal to sec square theta. This is the formula that I am using over here. यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज किया है? डिफरेंशिएशन ऑफ tan थीटा क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा. तो यहाँ पे देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ L और यहाँ पे फाई लिया है तो डिफरेंस, ये तो कांस्टेंट है, r बाहर आ गया. सो डिफरेंशिएशन ऑफ tan फाई क्या आ जाएगा? sec स्क्वायर फाई. ये वाला फॉर्मूला यूज किया. सो फ्रॉम हियर व्हाट विल यू गेट? दिस dl is equal to r sec square phi d phi. Say this is number 2. Okay, this is number 2. So we have found dl. dl is done, sin theta is done. Next what is left? r. r is also what? Unknown. r is also unknown. So for r again we are going to find from here. See this triangle. ये वाला ट्रायंगल देखिए और यहाँ से क्या निकालेंगे हम लोग? r निकालेंगे, स्मॉल r, बिकॉज r स्मॉल r क्या है फिर से हम लोग को पता नहीं है. सो वी हैव टू फाइंड इन टर्म्स ऑफ द नोन वैल्यू. सो सी हियर वी डोंट नो व्हाट इज r. सो लेट अस से दिस इज r. वी डोंट नो व्हाट वी नो. दिस r we know. So from this triangle what is the value? This is what is r? r is your hypotenuse and this capital R is the base. So it is h by b. We know base by hypotenuse is equal to what? Is cos theta. So it is reverse of cos theta. It will be what? Sec theta. But theta in place of theta what is there? Phi is there. So what we can write from here, you can see this small r will be equal to what? Capital R sec phi. So in place of small r what we can write? R sec phi. Says this is number 3. Now we are going to replace these values. Now see, ये वाला इक्वेशन में सबका हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. किसका किसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे? पहले साइन थीटा है, साइन थीटा का वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे. नेक्स्ट क्या है? dl है, dl का वैल्यू कितना आया है? r sec स्क्वायर फाई d फाई लिखेंगे. नेक्स्ट क्या लिखेंगे? स्मॉल r का वैल्यू क्या है? r sec फाई. वो वाला वैल्यू पुट करेंगे. क्यों ये सब कर रहे हैं? क्योंकि ये जो वैल्यू है dl साइन थीटा और r हम लोग को पता नहीं, इसलिए क्या लिखा है? दिस इज नोन वैल्यूज. r पता है, फाई पता है, फाई 1 पता है, फाई 2 पता है. ये सब पता नहीं है क्या है? स्मॉल r पता नहीं है, थीटा पता नहीं है, dl पता नहीं. तो जो जो पता नहीं है उसको हम लोगों ने चेंज कर लिया है. कहाँ से, किस में चेंज किया है? नोन वैल्यूज में चेंज किया है. तो ये वाला वैल्यू हम ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे. ओके, नाउ पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1. सो मैं ये वाला पार्ट आके लिख देता हूँ. पुटिंग द वैल्यूज. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? dv. dv इज इक्वल टू क्या है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई. म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ऑलरेडी है. आई तो क्या आई रहेगा? dl के जगह में क्या लिख सकता हूँ? r sec स्क्वायर फाई d फाई. सो दिस इज r sec स्क्वायर फाई d फाई. तो dl का काम हो गया. नेक्स्ट क्या है? साइन थीटा. साइन थीटा कितना है? cos फाई. यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं? cos फाई डिवाइडेड बाई ये r स्क्वायर है. r का वैल्यू कितना है? कैपिटल R sec थीटा. तो स्क्वायर है तो स्क्वायर में क्या आ जाएगा? r स्क्वायर sec स्क्वायर फाई. रिप्लेस कर दिया, इस इक्वेशन में हम लोगों ने पुट कर दिया. ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिए. मैं इसको मिटा दूंगा अभी और इसका हम लोग डिराइवेशन करेंगे. ओके, ये वाला पार्ट लिख लीजिए. ओके, नाउ सी, ये इक्वेशन तो आ गए यहाँ पर. नाउ हम लोग क्या करेंगे? इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कितना आता है. ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है. लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड बेस्ड ऑन द रिजल्ट. डिराइवेशन उतना नहीं पूछता है, but the result is important. You have to remember the formula. NCERT बुक में इसका डायरेक्टली फॉर्मूला दिया हुआ है, डिराइवेशन नहीं है. ओके, तो डिराइवेशन उतना नहीं आता है. कहाँ से आता है? सो दिस इज sec स्क्वायर फाई. सो लेट अस कैंसिल इट. दिस इज r, या कैंसिल. क्या बचा यहाँ पे? म्यू नॉट अपॉन
4 पाई आई, और ये क्या बचा cos फाई, दिस इज डी फाई डिवाइडेड बाय आर। ये तो छोटा सा एलिमेंट के लिए है, डी एल के लिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू इतना मिला। टोटल वायर के लिए कितना मिलेगा एक्स वाई, तो टोटल वायर के लिए अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी वी और इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट आई 4 पाई cos फाई डी फाई बाय आर। नाउ सी वी हैव टू पुट द लिमिट्स। यहाँ पे ये जो फाई 1 फाई 2 लिखा था, क्यों, लिमिट के लिए लिखा था। जैसे मैं यहाँ से यहाँ था तो फाई एंगल था, ये एंगल कितना था, ये फाई था, राइट। जैसे मैं यहाँ से जाऊँगा तो ये एंगल क्या हो गया फाई 2, यहाँ तक जाऊँगा तो ये वाला एंगल क्या है फाई 1। तो लिमिट कहाँ से जा रहा हो, ये जो एक्सिस है इसके नीचे माइनस होता है, इसके ऊपर क्या होता है प्लस, ये वाला होता है ना वाई, वाई क्या लेते हैं प्लस, वाई माइनस, एंगल के टर्म्स में नीचे वाला क्या लेंगे माइनस, ऊपर वाला प्लस। ये एक्सिस के टर्म्स में जस्ट समझने के लिए याद रख लीजिएगा, एक को माइनस लेंगे एक को प्लस लेंगे। लिमिट कहाँ से कहाँ जाएंगे, वी आर मूविंग फ्रॉम माइनस फाई टू, ये नीचे वाला जो एंगल होगा ये क्या लेंगे माइनस फाई टू नीचे है, ऊपर में जो है क्या है प्लस फाई 1, तो वहाँ पे क्या लिखेंगे फाई 1, इंटीग्रेशन ऑफ फाई 1, इंटीग्रेशन ऑफ डी बी विल बी इक्वल टू बी। नाउ ब्रिंग ऑल द कांस्टेंट टर्म आउटसाइड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा म्यू नॉट आई, यहाँ पे 4 पाई आर, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस फाई डी फाई डिवाइडेड बाय आर, तो आ गया, आर रहेगा ही नहीं यहाँ पे, आर इज ए कांस्टेंट, इतना आ गया। और ये लिमिट क्या है माइनस फाई 2, ये क्या है फाई 1। ना यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ बी, बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा म्यू नॉट, दिस इज आई डिवाइडेड बाय 4 पाई आर, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो यहाँ पे साइन फाई लिखेंगे और ये माइनस फाई 2 तो ये फाई 1। सो दिस बी इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई आर। लिमिट पुट करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन ऑफ फाई 1 माइनस साइन ऑफ माइनस फाई 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, सो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई आर, ये क्या आ जाएगा साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। सो दिस इज द रिजल्ट, दैट मीन्स ये जो वायर है एक्स वाई वायर, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड इस पोजीशन में स्ट्रेट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू होता है वो कैसे मिलता है, बाय दिस इक्वेशन, that is B is equal to mu naught I divided by 4 pi r sin phi 1 plus sin phi 2. You have to remember this value, this is very important, okay। ये बहुत important एक derivation है और फॉर्मूला बहुत important है। ये फॉर्मूला स्ट्रेट वायर के लिए कितना होता है, ये होता है, आप लोग को ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें कंडीशन देखते हैं, ओके इसका कंडीशन देखते हैं, अगर ये जो वायर होगा एक्स वाई वायर ये इनफाइनाइटली लॉन्ग हो जाएगा, इनफाइनाइटली लॉन्ग होने से क्या हो जाएगा, ये फाई 1 और फाई 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, सपोज ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो ये एक्स का जो वैल्यू है ये वाला वायर कहाँ जाएगा, ऐसे नीचे जाएगा, ये फिर से जाएगा, जैसे ये नीचे जाएगा देखिएगा इनफाइनाइट लॉन्ग, ओके ये वैल्यू लिख लीजिए, मैं इसको आपको समझाने के लिए यहाँ लिख लेता हूँ, just write it down this thing, okay now see, तो अल्टीमेटली हम लोग को रिजल्ट क्या आया वो इंपॉर्टेंट है। द रिजल्ट दैट वी हैव गॉट इज B इज इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 4 पाई r होल्डिंग इनटू साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। नाउ कंडीशन नंबर, कंडीशंस, स्पेसिफिक कंडीशंस, कंडीशन नंबर 1, इफ the wire XY is infinitely long, then phi 1 equal to phi 2 equal to 90 डिग्री होता है। कैसे, now see, ये अगर x था ये नीचे जा रहा है, ये जो phi का एंगल कितना हो जाएगा, बढ़ जाएगा थोड़ा सा बढ़ा, और नीचे आया ये फाई क्या हो जाएगा और बढ़ेगा,
और नीचे गया ये y लंबा हो गया तो ये फाई का वैल्यू बढ़ता जाएगा, लेकिन ये इन्फिनिटी तक जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा, एंगल ऐसा था, बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, वो ऐसा हो जाएगा, तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। सिमिलरली अगर y ऊपर जाएगा, क्योंकि इनफाइनाइटली लॉन्ग है, क्यों लिखा है द वायर एक्स वाई इज इनफाइनाइटली लॉन्ग, तो ये वाला वायर ऊपर जाएगा तो ये ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, ये यहाँ जाएगा तो ये ऐसा बनेगा, ये ऊपर गया फिर से ये ऐसा बनेगा, ऐसे ऐसे करके ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो दोनों φ1 और φ2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए φ1 और φ2 का वैल्यू क्या होता है 90 डिग्री। तो उस केस में b का वैल्यू क्या हो जाएगा, देन मैग्नेटिक फील्ड b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 4 पाई r, और यहाँ पे क्या लिखेंगे साइन 90 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री। साइन 90 कितना होता है 1 1 होता है, साइन 90 कितना होता है 1 1, उसको हम लोग लिख देते हैं b इज इक्वल टू क्या होता है 2, 1 प्लस 1 क्या होता है 2, डायरेक्टली लिख दिया म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 4 पाई r। इसको 2 को कैंसिल भी कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो चलेगा, क्यों, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या होता है कांस्टेंट होता है, जिसका वैल्यू हम लोग को पता है 10⁻⁻7 यूज़ करने के लिए, तो ये हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ये वाला फॉर्मूला। So for infinite long wire magnetic field at point P is given by 2 mu naught I divided by 4 pi r। Infinite long wire के लिए magnetic field का वैल्यू इतना होता है, ठीक है। ये तो एक कंडीशन हो गया। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर नहीं है, सपोज इनफाइनाइट लॉन्ग वायर ही है, लेकिन जब पॉइंट P है, ये पॉइंट यहाँ पे नहीं है, सपोज ये वायर इनफाइनाइट है लेकिन ये पॉइंट कहाँ है, x के बगल में है, ओके। सो ये वाला पॉइंट लिख लिया है। नेक्स्ट कंडीशन देख लेते हैं, हम लोग लिख लेते हैं नेक्स्ट कंडीशन। दिस इज कंडीशन नंबर 1। नेक्स्ट नंबर 2, सेकेंड कंडीशन क्या है, द वायर XY is infinitely long, but the point P lies near X, नहीं तो Y के बगल में भी रह सकते, नियर X वाला के लिए लिखेंगे कंडीशन, Y के लिए भी सेम ही हो जाए, नियर X is the wire is infinitely long but the point P lies near X, then magnetic field is given by, okay, और then इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, then मैग्नेटिक फील्ड तो निकालेंगे, then देखिएगा क्या है, ये जो X है ये P पॉइंट मैं अभी ड्रॉ कर देता हूँ। सपोज ये वायर इनफाइनाइट लॉन्ग है, लेकिन क्या है ये ऐसा है, X पॉइंट जो है वो फिक्स है और ये Y वाला इनफाइनाइट तक जा रहा है, और P पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, इस पोजीशन में लाई कर रहा है। तो उस केस में जो φ1 होगा वो φ1 कहाँ जाएगा, वो ऐसा हो जाएगा φ1, ये वाला P पॉइंट ऐसा है, ये यहाँ पे है, सपोज ये पॉइंट यहाँ पे है, ये जो एंगल बनेगा वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ओके। φ1 जो होगा वो φ1 कितना आ जाएगा 90 डिग्री, लेकिन ये जो φ2 होगा, ये φ2 एंगल, वो φ2 एंगल कितना हो जाएगा, φ2 जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, नहीं आया फिर से देखिए, अगर नहीं आया एक बार फिर से ध्यान दीजिए, यहाँ मैं फिर इसमें खाली φ1 और φ2 ही लिख के रखता हूँ, बाकी सब मैं मिटा देता हूँ। दिस इज φ2, ये पॉइंट क्या है x, अगर P जो पॉइंट है वो x के बगल में लाई करता है, इसको हम लोग रिवर्सली बोल सकते हैं, अगर x पॉइंट यहाँ पे है और वायर जो है वो क्या है इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये y वाला जो पॉइंट है वो कहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, वो इन्फिनिटी तक जा रहा है, और x जो है वो कहाँ है, यहाँ आ जाएगा। तो ये x अगर ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा, x वाला पॉइंट, ये जो एंगल बना है φ2 वो कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे था, ये P यहाँ पे x था, तो ये एंगल बन रहा था कितना φ2, अगर ये x यहाँ होगा ये φ2 कितना हो जाएगा, ये φ2 कम होता जाएगा, अगर x यहाँ पे होगा तो φ2 क्या हो गया, छोटा हो गया, फिर से इतना कम हो गया,
x यहाँ होने से फिर से एंगल क्या हो गया, छोटा हो गया, इतना हो गया। जब x यहाँ आ जाएगा तो एंगल क्या बन जाएगा, 0। तो ये φ2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। लेकिन ये जो पार्ट है वो कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। सो दिस एंगल विल इंक्रीज एंड इट विल बिकम हाउ मच, 90 डिग्री। इन दैट केस इट विल बिकम 90 डिग्री। सो फॉर दैट केस व्हाट वी कैन राइट देन, φ2 इक्वल टू क्या है, φ2 इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड φ1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। देन b इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई r था, और ये क्या था, साइन, पहला वाला कितना था, साइन φ1 का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री प्लस साइन 0 डिग्री। ओके, सो दिस b विल बी इक्वल टू हाउ मच, दिस इज म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई r एंड दिस द वैल्यू ऑफ 90 इज हाउ मच, 1, और ये क्या हो जाएगा, 0। सो इसमें से क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट, i कहाँ, i यहाँ है, i है, म्यू नॉट i डिवाइडेड बाय 4 पाई r। उस केस में b का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का, म्यू नॉट i डिवाइडेड बाय 4 पाई r। सो आप लोग को मेन फॉर्मूला याद रखना है। मेन फॉर्मूला क्या होता है, फॉर ए इनफाइनाइट, फॉर ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर, मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है दैट इज गिवन बाय म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई i, नीचे r आ जाएगा, होल थिंग इंटू साइन φ1 प्लस साइन φ2। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर हो जाएगा तो φ1 और φ2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90। तो 90 का वैल्यू क्या होता है, साइन 90 इज 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2। तो क्या लिख सकते हैं, 2 म्यू नॉट i डिवाइडेड बाय 4 पाई r। ठीक है, एक साइड x के बगल में p पॉइंट है और जो y का वैल्यू है वो इन्फिनिटी तक जा रहा है, या उसका उल्टा y वाला पॉइंट जो है p के लाइन में है। ठीक है, ये p पॉइंट है, यहाँ पे y है, x वाला जो पॉइंट है वो इन्फिनिटी तक जा रहा है। उस केस में φ1 या φ2 में कोई भी एक 90 हो जाएगा, एक 0 हो जाएगा। उस केस में b का वैल्यू क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। सो द डिराइवेशन से सबसे इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला याद रखना। बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला lot of numericals you will get in the question, lot of conceptual questions you will get in your exam. So let us do some questions, let us do one question or two questions based on this concept. Okay, तो मैंने क्वेश्चन लिख लिया है बोर्ड में, इसी के थ्योरी जो अभी पढ़ा है इसी थ्योरी के बेस्ड ये क्वेश्चंस करेंगे। ओके, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट इज गिवन, एन इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर कैरीज करंट ऑफ 100 एम्पियर. At what distance from the conductor is the magnetic field caused by the current equal to 0.5 into 10 to the power -4 टेस्ला. मतलब क्या बोला है इसका, एक इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर है, ए इनफाइनाइट है, सपोज ये मैं डॉटेड कर देता हूँ, मतलब इन्फिनिटी तक है, यहाँ से इन्फिनिटी तक है, एक वायर है और इसमें करंट फ्लो कर रहा है। कितना दिया, आई का वैल्यू 100 एम्पियर दिया हुआ है, बिकॉज करंट कितना फ्लो करता है, 100 एम्पियर. एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर, कंडक्टर का कितना डिस्टेंस में मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है, कंडक्टर का कितना डिस्टेंस, लेट अस से ये डिस्टेंस कितना है, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या लेते थे यहाँ पे r डिस्टेंस में, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दिया, ये p पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0.5 इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला, ये दिया हुआ है क्वेश्चन. ओके, इनफाइनाइट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, इनफाइनाइट वायर, अभी हम लोगों ने डिराइवेशन किया है. इनफाइनाइट वायर के लिए क्या होता है, देखिएगा क्या लिखते थे, अगर आप लोग को याद नहीं रहता है मेन फॉर्मूला, ठीक है, ये डायरेक्टली अगर याद नहीं रहते तो मेन फॉर्मूला तो आप लोग को पता है क्या होता है, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय क्या था, 4 पाई r, और ये क्या था, साइन φ1 प्लस साइन φ2, ये मेन फॉर्मूला था. अगर इनफाइनाइट लॉन्ग होता है, इसका वैल्यू कितना होता है, 90 डिग्री, और इसका भी वैल्यू क्या होता है, 90 डिग्री. सो साइन 90 कितना होता है, 1, तो क्या हो जाएगा 2. तो b का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, 1 प्लस 1, ये 1 सामने लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 2 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई r. तो मेन फॉर्मूला क्या है, ये है, किसके लिए, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए. इस क्वेश्चन में b दिया हुआ है, I भी दिया हुआ है, ये पूछा है हम लोग को r का वैल्यू कितना है, ये निकालना है. क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया. क्वेश्चन नंबर 1 कुछ नहीं है, डायरेक्टली वैल्यू पुट करना है, ये क्वेश्चन है, तो मैं डायरेक्टली वैल्यूज लिख के सॉल्यूशन करता हूँ. ओके, तो इसको मैं मिटा देता हूँ. क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है इसको लिखना है हम लोगों को. सो व्हाट इज गिवन, लेट अस राइट इट डाउन फर्स्ट.
सो व्हाट इज गिवन, गिवन पहला का सॉल्यूशन है I, करंट कितना दिया हुआ है 100 एम्पियर, B का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.5 into 10 to the power minus 4 Tesla. Okay, now we know that for infinite long wire B का वैल्यू क्या होता है, B इज इक्वल टू 2 म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 4 पाई R. सो यहाँ से R निकाल लेंगे तो R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 4 पाई B. वैल्यू पुट कीजिए 2 इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, या हम लोगों ने बायो-सावर्ट लॉ में पढ़ा था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू क्या होता है 10 to the power -7. सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को क्या लिख सकते हैं 10 to the power -7. करंट कितना है 100 है, B का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.5 इंटू 10 to the power -4. ओके, 5 से कितना टाइम जाएगा 0.1 हो गया, 5 2 ज़ा 10 20. तो इसमें क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 4, 40 आ गया, 10 का पावर -7. नीचे क्या आ जाएगा 10 का पावर, दिस इज 0.1 इंटू दिस 10 to the power -4. तो क्या आ जाएगा ये 10 का पावर -5 लिख सकते हैं. 0.1 ये 0.1 यहाँ पे पावर आएगा, 10 का पावर -5 हो गया. यहाँ से क्या आ जाएगा ये 40 इंटू 10 to the power, दिस इज ये प्लस हो जाएगा, सो ये आ जाएगा -2. सो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 0.4 मीटर में आ जाएगा, सब ऐसा यूनिट में दिया हुआ है. सो कितना डिस्टेंस में मिलेगा हम लोग को 0.4 मीटर. कंडक्टर का, ये सपोज कंडक्टर है इनफाइनाइट लॉन्ग है, इसका 0.2 मीटर दूरी पे उसका जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू दिस इज 0.5 इंटू 10 to the power -4 टेस्ला. ये पहला वाला क्वेश्चन का ये आंसर है. ओके, लेट अस गो टू द क्वेश्चन नंबर 2. सी क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, रीड, इसको लिख लीजिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 यू कैन सी क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में. Find an expression for magnetic field induction at the center of a coil bent in the form of a square of side 2A carrying current I as shown in the figure. एक वायर है, उस वायर को क्या क्या एक स्क्वायर में हम लोगों ने इसको कन्वर्ट कर लिया. बिकॉज फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द सेंटर, सेंटर में निकालने के लिए बोला है. और ये क्या है, एक स्क्वायर है ABCD, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है कितना I करंट, I जा रहा है, यहाँ पे भी जा रहा है, यहाँ पे भी जा रहा है, करंट फ्लो कर रहा है. राइट नाउ इसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो पूछा है. नाउ डायरेक्शन पूछेगा तो कैसे निकालते थे हम लोग, राइट हैंड थंब रूल. करंट किस तरफ है, इस तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, यहाँ पे करंट है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, करंट डाउनवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ. सो नेट जो मैग्नेटिक फील्ड है एक ही डायरेक्शन में होगा. सो डायरेक्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं है. नाउ ये वाला वायर हम लोग इसको ड्राइंग बना लेते हैं. नंबर 2 का सॉल्यूशन. सो दिस इज ए स्क्वायर, एक स्क्वायर है ये, दिस इज A, this is B, this is C, this is D, and this is the center O, and the current flowing is I current. All the sides are क्या है 2A, सभी साइड्स क्या है 2A. अगर मैं इसका बीच में से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूँ इस सेंटर में, what I am going to do, I am drawing a perpendicular bisector at the center O. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, राइट. तो ये जो लेंथ होगा यहाँ से लेकर यहाँ का, ये लेंथ कितना आ जाएगा, ये वाला लेंथ क्या आ जाएगा A, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है. नेक्स्ट ये एक स्क्वायर है, तो अगर मैं यहाँ से एक लाइन खींचता हूँ, ऐसा खींचता हूँ, ये वाला एंगल कितना होना चाहिए, ये टोटल एंगल कितना होता है, ये 90 डिग्री होता है. स्क्वायर में डायगोनल्स परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है. एक स्क्वायर में डायगोनल्स बाइसेक्ट इच अदर, ठीक है, बाइसेक्ट करता है, और कितना परपेंडिकुलरली. ये स्क्वायर का ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है. तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा, टोटल 90 है, तो ये वाला कितना होना चाहिए 45 डिग्री, ये वाला एंगल कितना होना चाहिए 45 डिग्री. आ गया ऐसा कंडीशन. देखिएगा ऐसा इस पॉइंट में निकाल रहे थे, ये क्या लिखा था φ1, ये क्या लिखा था φ2, ये x था, ये y था, ये पॉइंट A था. φ1 φ2 का वैल्यू कितना मिल गया 45 डिग्री. राइट. ऐसा कितना साइड है, एक साइड है,
एक साइड है, एक साइड है, एक साइड है, टोटल 4 साइड्स है। तो जो हम लोग का आंसर होगा, जो फॉर्मूला उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा, राइट। एक साइड का निकाल लेते हैं, एक साइड का वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा, क्योंकि बाकी सब के लिए भी सेम ही होगा, राइट, सेम ही होगा। सो ये वाला साइड के लिए हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये वाला डिस्टेंस पता है क्या मुझे? नहीं पता है, तो निकालेंगे इसको। देखिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ का लेंथ कितना ए है, और मुझे पता क्या है, ये वाला 45 डिग्री। तो मुझे पता चाहिए क्या, ये मान लेते हैं दिस इज एक्स, ये वाला लेंथ मुझे चाहिए, मुझे पता नहीं तो मैंने लिख लिया एक्स डिवाइडेड बाय क्या कर देता हूँ ये। सो ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में एक्स क्या है, ये 45 डिग्री के साथ टच कर रहा है, तो ये क्या हो गया, बेस हो गया। ए क्या है, ए क्या है, यहाँ पे 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेन्यूज होगा, तो ये क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। सो बेस बाय परपेंडिकुलर क्या होता है, कॉट थीटा, थीटा मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे 45 डिग्री। सो एक्स बाय ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, कॉट 45 का वैल्यू 1। सो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, ए। मतलब ये जो एक्स है, यहाँ से इस वायर से इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी का, किसके लिए, फॉर ए डी। ए डी के लिए मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिए कितना लिखेंगे हम लोग, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई, और यहाँ पे जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या है, यहाँ पे ए होगा, डिस्टेंस जो है क्या होगा, ए होगा। तो आर नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए। और अंदर में क्या लिखेंगे, साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री, ठीक है। साइन 45 है, क्योंकि φ1 और φ2 का वैल्यू कितना है, 45, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट यू सी, ये साइड कितना है टोटल, ए 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड। तो डायरेक्टली हम लोग नेट मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे, नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर लिखेंगे तो इसको क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल साइड कितना है, चारों साइड के लिए हो जाएगा। एक तो ए साइड के लिए ना मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, बिना 4 का आएगा। चारों साइड के लिए तो क्या हो जाएगा, 4 सबका ऐड करना पड़ेगा, सो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। सो आंसर कितना आ जाएगा, ये लिख लीजिएगा पार्ट। तो डायरेक्टली मैं कर दिया हूँ, ये वाला पार्ट लिख लीजिएगा कहाँ से आया है, ओके। ये कॉट कहाँ से आया है लिख लीजिएगा। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू मैं यहाँ लिख लेता हूँ, क्या है 4, म्यू नॉट को म्यू नॉट ही रखते हैं, आई ही रखते हैं क्योंकि आई का वैल्यू आई दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय 4 पाई ए। अंदर में cos 40 साइन 45 का क्या होता है वैल्यू, 1/√2 प्लस 1/√2। इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं थोड़ा सा, तो ये क्या हो जाएगा, b का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई ए। इसका अगर एलसीएम लेंगे तो ये √2, ये 1 + 1, ये 1 + 1 लिखते हैं। तो नेक्स्ट लाइन में क्या लिख सकते हैं, दिस इज 4 गया कैंसिल, सो 4 जाएगा कैंसिल, तो क्या बचा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय पाई ए। और ये क्या आ जाएगा 2, अंदर √2 से काटेंगे तो ये क्या आ जाएगा √2। सो दिस बिकम्स √2 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय पाई ए। सो ये आंसर है सेकेंड वाला क्वेश्चन का। सो सेकेंड वाला क्वेश्चन के लिए मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर इज गिवन बाय √2 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय पाई ए। नाउ द थिंग इज हियर द वैल्यूज ऑफ आई इज नॉट गिवन. In the question I is given, so in some questions you may find the value of I is also given, A is also given, then you have to put the values of I as well as A. Then what will you do, you also have to put the values of mu naught upon 4 pi. Okay, mu naught upon 4 pi is equal to how much, 10 to the power minus 7. Okay, so in this way we have to solve the questions and see, remember the formulas, this formula is very important. Okay, based on this formula a lot of questions comes in your examination, but the derivation of this theory is not given in your NCERT book, but this is very important because a lot of questions are asked based on this formula. So practice this. So whatever we have done, practice it, then only you will be able to remember the thing. Okay, just practice this thing. So we'll wind up today. Thank you.